if you want to exist, just exist as a normal human being who is not unhealthy, then why exercise is important? Today's session is going to be all about that. If you are someone who feels your energy is not at the where you want to be, you don't feel constantly energetic throughout the day, you may feel anxious, you may feel slightly stressed, and emotionally you feel overwhelmed all the time, then today's session might really help you. If you feel like your general well-being, your sleep cycle, your wake up cycle, all of that is disturbed, then today's session will definitely be worth it to watch. So I'm going to tell you why fitness, okay, why staying fit or achieving a certain body shape is the last reason why you should be exercising. There are many more important reasons why you should be exercising just to exist as a normal human being who is not suffering in this life, who is not having diseases, who is just healthy. To just stay as a healthy person, you should be focusing on exercising, and I'm gonna give you a couple of reasons, experiences, research into why all of this, what I'm saying, matters the most. I think this might be the most important video when it comes to your body, your health, that I can ever do. I think I will divide this video into 2 parts because otherwise it will get too long. So first we need to look at our lifestyle right now. How do you think our lifestyle is today? ठीक है, लेट्स सी. हम सुबह उठते हैं, ठीक है, बैठे बैठे ऑफिस चले जाते हैं कैब या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, अनलेस यू आर ट्रैवलिंग इन मुंबई ट्रैवल. बट आप ज़्यादातर बैठे बैठे हम ऑफिस चले जाते हैं कैब्स वगैरह में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में. फिर ऑफिस में जाके बैठ के पूरा दिन काम करते हैं, फिर घर पे आके बैठ के खाना खाते हैं, फिर लेट के सो जाते हैं, एंड फिर वो साइकिल चलती रहती है. So there is no movement at all that is happening. There's little to no movement अगर आप अलग से एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल रहे हो. Let's compare this with how our ancestors used to live. ठीक है, we Homo sapiens have been on earth for around 300,000 years now. 300,000 years में से मान लो 10,000 से सोसाइटी बनी है, 10,000 सालों से, ठीक है. That is around 3% of what our existence has been on earth. उस 3% में से भी 1 या 2 पीढ़ी पहले तक हमारे ancestors कैसे जीते थे? How was their body movement made? उनका कैसा रूटीन दिखता था? Although हम खाना उनके जैसा खाते हैं, but आज हमारी बॉडी उनके जैसी नहीं है because हमारे मूवमेंट लेवल उनके जैसे नहीं है. Why? Because let's look at their routine, okay? They would wake up, they would go for a walk, सैर करने जाते थे, then they would either go for their walking again, or they will go to work in fields, because mostly our society used to be agricultural, and then they would go to their farms. They will work on their farm the entire day, and if you know, the farm work is so difficult and movement intensive. अगर आपने कभी फावला उठा के ऐसे भी किया है ना, you'll realize how much effort it takes to do that. So they used to do heavy labor intensive work in the field. वो चाहे लगाना हो गया, डिफरेंट चीज़ें करना हो गया, काटना हो गया फील्ड्स को, या फिर फावला चलाना हो गया, जो भी चीज़ें हुई, ठीक है. दे वुड डू दैट द एंटायर डे. सो एंटायर डे दे आर इन्वॉल्व इन मूवमेंट. दे वुड कम बैक होम सैर करते हुए या वापस पैदल चल के आएंगे, एंड देन दे वुड स्लीप, ठीक है. दैट यूज टू बी देयर नॉर्मल रूटीन. अब उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है. एज आई टोल्ड यू गाइज, मोस्ट ऑफ आवर टाइम्स वी स्पेंड सिटिंग और लेइंग डाउन, बट हमारा खाना तो वैसे ही है. बॉडी की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, ठीक है. बॉडी जिस तरह से हम आज चला रहे हैं अपनी, वो चेंज हो चुका है, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज जस्ट बाय नॉट डूइंग एनीथिंग. अ लॉट मोर पीपल टुडे आर गोइंग थ्रू सो मेनी डिसीजेज. Why? Because of lack of movement, and I'm gonna give you research into it, reasons why it happens, and let's see. Okay, so the first thing that I want to tell you is our body has a system known as lymphatic drainage system. It works when we are sleeping, जब हम सो रहे होते हैं. So during our sleep, and not just any sleep but deep sleep, okay? Deep sleep is required for our lymphatic system to work. So during our deep sleeping hours, our lymphatic system, it heals our body, it clears our toxins. Now those toxins are converted into these fluids, and those fluids, the fluid that is supposed to be discharged from the body because it contains those toxins,
it goes and gets stored in lymph nodes. What are lymph nodes? Different body parts में होते हैं हमारे, यहाँ पे होते हैं, गले में होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है. So that fluid goes ahead and gets stored in those lymph nodes. आप हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इट डज नॉट हैव अ पंप ऑन इट्स ओन. उसके पास अपना खुद का पंप नहीं होता कि वो लिम्फेटिक फ्लूइड्स जो है वो निकाल सके बॉडी के अंदर से. Our heart has a pump, but it does not have it. So it relies on muscles and muscle movement to रिमूव दैट टॉक्सिन फ्रॉम आवर बॉडी. सो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करो, क्योंकि एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी मसल्स मूव होती हैं, फिर हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड्स होते हैं वो और लिम्फेटिक हमारा जो सिस्टम होता है वो ड्रेन करता है वो फ्लूइड्स को, और वो टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकलता है. सो अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, इफ़ यू हैव नॉट बीन एक्सरसाइजिंग फॉर एटलीस्ट 15-20 minutes for days and days, imagine all of those toxins are getting stored in your body. In short term, it causes you to retain a lot of water. 2 to 3 kgs people can retain easily. You will feel heavier, you will feel bloated, you will feel much more puffy, and that's just short term things, okay? But the long term damage that it does is those toxins which are not getting out of your body, they are staying in your body for a long time, and what it does is those toxins go to different parts of your body and creates diseases. अगर heart में जाएंगे तो heart related issues होंगे. If it goes to your reproductive system, then it will cause reproductive issues like PCOD and other issues. If it goes to your kidney, it will cause kidney stones and other issues. So if you're not doing exercise, then your lymphatic fluids are not getting drained, your lymphatic system is not getting drained, and you're carrying those toxins for days and days and weeks and weeks and maybe months and months if you have not been exercising for months. So first reason why you should be exercising is to just exist as a not unhealthy human being. I can understand that is not your priority to be healthy. I can understand that. सबकी नहीं होती है, ठीक है, but एटलीस्ट ये तो प्रायोरिटी अपनी होगी दैट वी आर नॉट हैविंग अ डिसीज एंड वी आर नॉट लिविंग इन पेन और प्रॉब्लम्स और इश्यूज. यू विल वॉन्ट योर सेल्फ टू एटलीस्ट नॉट हैव डिसीजेज, राइट? यू can only do that when your lymphatic system is getting drained on a daily basis and you're not carrying those toxins in your body. So go ahead and do exercise, at least 15 minutes of exercise, 20 minutes of exercise, so that your lymphatic system can drain itself. और कोई specific exercise नहीं करनी होती है, ठीक है? Those massages and all, that's like a fad. Any movement you do, any shaking, walking, any kind of movement, yoga, pilates, कुछ भी आप करो, any movement that is giving your body the work that it needs, आपकी muscles move हो रही हैं, that is enough for doing a lymphatic drainage. What I'll do is below this video, I will also tag one 15-minute specific lymphatic drainage video, which has these really simple movement which will help you on days when you're not planning to exercise or anything. You can just do those 15 minutes ka exercise. You can do it anywhere you are, just standing up, and that will help you to drain your lymphatic system and ensure that you're not carrying those toxins and you're living a healthy life. So that's the first reason why you should be exercising, to drain your toxins out, to not let those toxins stay in your body and then convert it to diseases longer time. Okay? The second reason why you should be exercising is to maintain your brain chemistry. आज कितने सारे हम लोगों को एंजाइटी होती है, वी फील डिप्रेसिव स्टेट्स. नाउ दिस इज़ नॉट replaceable by medical advice. I'm not giving medical advice or clinical advice anyway here. I'm just telling about general health, okay? So if you have not been clinically diagnosed with depression, then और आपको बीच बीच में कभी कभी ऐसे फेजेस आते हैं वे यू फील डिप्रेस्ड, वे यू फील एंशियस, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, या बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको इरिटेबल लगता है, देन दैट मे हैपन बिकॉज योर ब्रेन केमिस्ट्री इज़ डिस्टर्ब्ड. वाई? बिकॉज अगर हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, अ लॉट ऑफ द मूवमेंट के ड्यूरिंग अ लॉट ऑफ आर chemicals in our brain, which is chemicals like serotonin, which is directly related to happiness and emotional health and mental health. Serotonin, dopamine, brain derived neurotrophic factor, which is BDNF. ये सारे chemicals release होते हैं when you exercise. So you feel happier, you feel more emotionally resilient. What do we mean by resilient? Emotions आपके बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाते हैं. You become more emotionally resilient. You become less foggy.
अगर एक्सरसाइज नहीं करोगे आप फोगी रहोगे, आप एंशियस रहोगे, वो डिप्रेसिव स्टेट्स भी आएंगे बीच में, एंड दैट इज़ नॉट बिकॉज योर लाइफ इज़ डिप्रेसिव. That all of that will happen because biologically the state has become depressive. Why? Because आपकी बॉडी नॉर्मली फंक्शन ही नहीं कर पा रही है, बिकॉज आप उसको इनफ मूव ही नहीं कर रहे हो कि वो जाके वो केमिकल्स रिलीज कर दे. ठीक है. सो एक्सरसाइज फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल हेल्थ, उसको मेंटेन करने के लिए. इफ़ यू डोंट वांट टू फील फॉगी, फॉगी क्या होता है, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद नहीं रहती, दैट इज़ फॉगी. इफ़ यू डोंट वांट टू फील इमोशनली एंशियस, डिप्रेस्ड और इमोशनल इतना ज़्यादा इरिटेबिलिटी नहीं फील करना चाहते हो, देन गो अहेड एंड डू एक्सरसाइज. रिमेंबर ऑल ऑफ दोज डिप्रेसिव स्टेट, इफ यू हैव नॉट बीन क्लिनिकली diagnosed, then all of that is not happening because of your life, it's happening because of your biology. Remember that. So you should be exercising for that reason, to stay happy, to enjoy life, to actually feel in good mood, to regulate your mood, regulate your focus levels, regulate your memory, and regulate your emotional resilience, which is regulate that your mood does not go up and down too much. वो सब मेंटेन करने के लिए यू नीड टू डू एक्सरसाइजिंग. द थर्ड रीज़न दैट यू नीड टू डू एक्सरसाइज इज़ टू मैनेज योर स्लीप एंड वेकअप साइकिल. व्हाट इज़ आवर स्लीप वेकअप साइकिल? हमारा क्या होता है, मॉर्निंग वी एज ह्यूमन्स हैव बीन ऑन अर्थ फॉर 300,000 ईयर्स. ठीक है. आर होमोसेपियंस, हमारी जो आज का जो मॉडर्न मैन है, दैट हैज़ बीन ऑन अर्थ फॉर अराउंड 300,000 ईयर्स. ठीक है. उससे भी पहले जो हमारा फर्स्ट मैन टू यूज़ फायर एंड यूज टूल्स, ही हैड बीन ऑन अर्थ फॉर 2.5 मिलियंस ऑफ ईयर्स. ठीक है. उसमें सारा का सारा हमारा जो मोस्टली टाइम रहा है, वी हैव स्पेंट इट रेगुलेटिंग आवर बॉडी विद द सन. हमारी बॉडी की एक सार्केडियन रिदम होती है, उसके हिसाब से हमारे सारे हार्मोन्स जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं वो चलते हैं. ठीक है. एंड इफ दैट डजंट वर्क आउट वेल, you will feel sleepy when you wake up, you will feel groggy, you will feel heavy, and रात में मेलेटोनिन टाइम पे नहीं, मेलेटोनिन विच इज़ द स्लीप हार्मोन, वो रात में नहीं ब्रेन रिलीज करेगा, एंड योर स्लीप हेल्थ विल बी इम्पैक्टेड एज वेल. और अगर आपकी स्लीप इम्पैक्ट होगी तो आपका लिम्फेटिक सिस्टम इम्पैक्ट होगा, मतलब आपकी बॉडी खुद को हील नहीं कर पाएगी और टॉक्सिन्स नहीं निकाल पाएगी. सो फॉर ऑल ऑफ दैट रीज़न इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू maintain your circadian rhythm and maintain your biological clock. अगर वो नहीं कर रहे हो, as I said, most of the time that our species has been on earth, जो इलेक्ट्रिक बल्ब डेवलप हुआ था वो 140 years ago हुआ था. ठीक है. सो अराउंड 100 years that we have started using bulb to have artificial light in the night. अगर वो आप नहीं कर रहे हो, ठीक है, फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ हु वी आर एज होमोसेपियंस, आवर बॉडी इज़ वायर्ड विद द सन. इट्स वायर्ड टू वेक अप विद द सन. तब हमारा कॉर्टिसोल रिलीज होता है, हम उठते हैं, एंड जब सन डाउन जाता है तब हमारा ब्रेन स्टार्ट्स टू रिलीज मेलेटोनिन, और हमारी पूरी बॉडी, आर एंटायर बायोलॉजिकल सिस्टम, आर लिम्फेटिक सिस्टम इज़ डिपेंडेंट ऑन दैट. तो अगर आप मूवमेंट नहीं कर रहे हो सुबह उठ के 15-20 minutes ऑफ मूवमेंट, नोबडी इज आस्किंग यू टू डू मच, एंड इट कुड जस्ट बी लिटिल बिट ऑफ जंपिंग, लिटिल बिट ऑफ जस्ट वॉकिंग हियर एंड देयर. इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, देन योर सार्केडियन रिदम विल बी डिसरेगुलेटेड. और जब वो होता है तो पूरे हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है, एंड उसकी वजह से वी फेस लाइफ स्टाइल इशूज़. इंसुलिन रेजिस्टेंस कम्स फ्रॉम देयर, अ लॉट ऑफ अदर लाइफ स्टाइल डिसीजेज कम फ्रॉम देयर. Hi Animesh, hi Yug, super happy to have you here. If you have any questions or anything or comments, you can always mention, and lovely to have you here. So we are talking about movement here. Why fitness should be the last reason that you should be exercising. Just to exist as a human who is not unhealthy, there are a couple of reasons why you should be prioritizing exercise just to exist, not just for fitness. Okay, that is what we are talking about today. So the third reason is अपनी sleep wake cycle, अपना hormonal balance को maintain करने के लिए you need to ensure, good morning Animesh, you need to ensure that you're exercising. अगर सुबह उठ के exercise नहीं कर रहे हो, your body is not getting those your body is not getting that signal कि अब सुबह हो चुकी है, I need to release these hormones so that I stop feeling I stop feeling groggy, I stop feeling sleepy.
एंड उसके बाद आपकी पूरे दिन में जो आपकी बॉडी बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, आपकी बेसिक नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है वो मेंटेन होती है. तो टू मेंटेन दैट नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 15 to 20 minutes a day मिनिमम. फोर्थ थिंग इज़ एनर्जी मैनेजमेंट के लिए कितने सारे लोगों को हमें अब ऐसा लगता है दैट वी वॉन्ट टू डू अ लॉट बट वी डोंट फील एनर्जेटिक. वाई? बिकॉज हमारा एनर्जी मैनेजमेंट होता ही मूवमेंट से है. ठीक है, यू गाइज रिमेंबर बचपन में हमें बोला जाता था माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल. हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है, तो बॉडी में एनर्जी भी सेल्स से आती है. ठीक है, तो मूवमेंट क्या होता है? व्हेन वी डू मूवमेंट इट रेगुलेट्स दैट माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. हमारा माइटोकॉन्ड्रिया अच्छे से वर्क कर पाता है, वो सेल्स को एनर्जी दे पाता है. योर सेल्स ATP बोलते, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ATP विच इज़ सेलुलर लेवल आपका एनर्जी जो होता है, दैट एनर्जी वुड बी क्रिएटेड एंड यू नो इट विल बी क्रिएटेड थ्रू आउट द डे. तो अगर आप 15 से 20 मिनट की सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लेते हो, एंड इट कुड बी एनी एक्सरसाइज एज ए सेट, इट डजेंट हैव टू बी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और 20 किलो 50 किलो वेट उठाने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. यू कुड जस्ट गो अराउंड एंड मूव, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव एंड मेंटेन योर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन. आपकी सेल की एनर्जी मेंटेन करने के लिए, अगर आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करना चाहते हो, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता. आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे अगर हर रोज़ आप लेज़ी फील कर रहे हो, हर रोज़ आप टायर्ड फील कर रहे हो, हर रोज़ यू फील लाइक आई एम आउट ऑफ एनर्जी. ऑल ऑफ दैट कैन बी मेंटेन्ड if your energy is maintained well, and that can happen if only you're exercising on a daily basis. Your mitochondria function improves, आपकी cells और ज़्यादा energy create करती हैं, and your regular exercise makes you feel charged. अगर आप exercise नहीं करते हो, you will feel drained on a regular basis, and most of you will agree here. ठीक है, that happens. So अगर आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा tired feel होता है and you पूरे दिन आपकी एनर्जी मेंटेन नहीं रह पाती, द आंसर मे बी लाइज इन मूवमेंट. सो दैट शुड बी द नंबर वन थिंग दैट यू गो अहेड एंड डू एक्सरसाइज फॉर 15-20 minutes. अनदर रीज़न वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ टू डू मूवमेंट इज़ डाइजेशन. ठीक है, गट से ब्रेन का कनेक्शन. ब्रेन जो हमारी बॉडी में एक नर्व होती है विच इज़ कॉल्ड वेगस नर्व. इट्स द बिगेस्ट नर्व इन आवर बॉडी. इट कनेक्ट्स आवर ब्रेन स्टेम विच इज़ इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम. ओके, सो इट कनेक्ट्स आवर ब्रेन टू all the major organs in the body, including our elimination system that we have, including our digestion system that we have. ठीक है, तो if your vagus nerves is dysregulated, जो कि होता है एक्सरसाइज ना करने की वजह से, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपका वेगस नर्व ठीक से काम नहीं करेगा. A lot of people today have this problem where they do not get they do not fully eliminate in the morning. उसकी वजह से क्या होता है, they feel heavy throughout the day and they feel less energetic and tired throughout the day as well. तो आपका digestion भी impact होता है. जो हमारा मूवमेंट होता है, what it does is it activates that parasympathetic nervous system. It activates the connection between our vagus nerve and our body. तो ब्रेन जो है अच्छी तरह से हमारे बॉडी को सिग्नल दे पाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सिग्नल दे पाता है कि अब डाइजेस्ट करो, अब एलिमिनेट करो, ताकि वो टॉक्सिन्स आपके अंदर से रिमूव होते जाएं. अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो एंड दैट कनेक्शन बिटवीन योर वेगस नर्व एंड योर डिफरेंट बॉडी, दैट कनेक्शन बिटवीन योर ब्रेन एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स इज ब्रोकन, अगर वो हो रहा है तो योर डाइजेशन विल बी स्लोड डाउन एंड योर डाइजेशन विल गेट फॉल्टी एज वेल. उसकी वजह से क्या होगा, यू विल नॉट डाइजेस्ट द एंटायर फूड दैट यू आर ईटिंग ऑन अ डेली बेसिस. और जो जितना भी अनडाइजेस्टेड पार्ट रहता है, 2%, 5%, 10%, दैट स्टेज इन अ बॉडी एज टॉक्सिन्स. एंड एज आई सेड इन द फर्स्ट पॉइंट एज वेल, दोज टॉक्सिन्स, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स वाई आज लोग इतना ज़्यादा डाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट फॉर आवर ओवरऑल हेल्थ. अगर फूड अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो दैट विल स्टे एज टॉक्सिन्स इन आवर बॉडी, एंड इफ़ इट हैपन्स ऑन लॉन्ग टर्म, बहुत ज़्यादा दिनों तक ऐसा होता रहता है, तो देन इट गोज़ टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड लीड्स टू डिफरेंट डिसीजेस. ठीक है, हार्ट में जाया तो इट विल कॉज दोज आर्टरी ब्लॉकेजेस. इफ़ दोज टॉक्सिन्स गो इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ऑर्गन्स, डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, देन वहाँ जाके उनकी डिसीजेस क्रिएट होती हैं. तो जस्ट
to maintain your digestion, just to stay healthy, it's important for you to do 15 to 20 minutes of exercise. It doesn't have to be anything, सिर्फ 15 मिनट का वॉक ही कर लो, but it's that important. मैं ये एक चीज़ इतना ज़्यादा बोल रही हूँ बार बार because a lot of us don't realize it. A lot of us don't realize it, and I feel really bad because हमें लगता है this is a privilege and this is an option and this is a luxury. It's not. It's your body's basic need. जैसे hydration, खाना और पानी हमारी body की basic need है ना, ऐसे movement is not an option. It's a basic need. I have personally ignored it for the longest time. ठीक है, मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ, मैंने खुद भी इग्नोर किया बिकॉज मुझे बहुत सारी बातें खुद से नहीं पता थी. आई हैव लर्नड दीज लेसन्स. आई हैव फेस्ड ऑल ऑफ दोज लाइफ स्टाइल इशूज़ बाई नॉट डूइंग मूवमेंट. सिर्फ काम पे ध्यान देते रहना. मेरे को लाइफ स्टाइल इशूज़ हो गए, मेरे को गर्ड हो गया जिसकी वजह से मेरा पूरा गला जलता था. माई टॉन्सिल्स आई वॉज अबाउट टू हैव अ सर्जरी, थ्रोट सर्जरी. ठीक है, इस हद तक मेरे को लाइफ स्टाइल डिसीजेज हो गए थे बिकॉज ऑफ नॉट प्रायोरिटाइजिंग मूवमेंट. एंड वंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, वंस आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई बॉडी, रेगुलेटिंग माई नर्वस सिस्टम, द कनेक्शन बिटवीन माई ब्रेन एंड बॉडी, रेगुलेटिंग माई डाइजेस्टिव सिस्टम, रेगुलेटिंग माई मूवमेंट, मेरी हेल्थ वापस आना शुरू हुआ एंड आई वॉज एबल टू अवॉइड दैट सर्जरी नेचुरली. नाउ दिस इज़ इन नो वे अ मेडिकल एडवाइस, आई विल गिव दैट डिस्क्लेमर अगैन, बट इट इज़ अ जनरल वेलबींग एडवाइस. अगर आप हेल्दी रहना चाहते हो, आपको कोई सीरियस इश्यूज़ अभी नहीं है बट आप चाहते हो कि फ्यूचर में भी ना हो, या अगर थोड़े बहुत इश्यूज़ होने स्टार्ट हो गए, इफ़ यू वांट टू रिवर्स दोस, प्लीज़ गेट बैक टू एक्सरसाइजिंग एंड ईटिंग हेल्दी. इट्स नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर फिटनेस, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर ओन वेलबींग. मैंने वो चीज़ बहुत गलती करी है. मैं क्या करती थी, मैं सोचती थी आई हैव टू लूज़ दिस मच अमाउंट ऑफ वेट, उसके लिए आई विल हैव टू वर्क फॉर 1 hour 1.5 hours. Either I will work for only 1.5 hours or I will not work out at all. उसकी वजह से क्या होता था, I had completely prioritized fitness only because of losing weight, only because of fitness. बट वो रीज़न नहीं था करने का. वर्कआउट करने के आपके पास बहुत सारे रीज़न है. एज आई सेड, फिटनेस इज़ द लास्ट रीज़न वाई यू शुड बी एक्सरसाइजिंग. नॉर्मल बॉडी को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल, नॉट अनहेल्दी रहने के लिए. हेल्दी भी, अगर आपको पूरा हेल्थ भी टारगेट नहीं करनी, nobody is saying that, but nobody wants issues and diseases, right? If you don't want those issues and diseases, please go ahead and work on your health. Movement is something 15 to 20 minutes आपको prioritize करना ही है for just normal functioning of your body. Normal functioning. Nobody is asking for you to target anything special. ठीक है. Sixth and last one is of course fitness. फिटनेस इज़ द रीज़न. अच्छा दिखना चाहते हो, बेटर दिखना चाहते हो, मसल्स गेन करना चाहते हो या फैट लूज़ करना चाहते हो, मूवमेंट इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द वेज टू डू दैट, वन ऑफ द बेस्ट वेज टू डू दैट. आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे टू डू दैट. वो रीज़न है आपके पास, बट दैट शुड नॉट बी द ओनली रीज़न दैट यू एक्सरसाइज. जस्ट टू summarize the entire session, मैं रिप्ले अटैच कर दूँगी so that you guys can go and watch. आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी रिसर्च पता चलेगी and you will be able to connect with all the points that I've talked here. But just to summarize in one line, आपके lymphatic system, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स हटाने के लिए मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपकी ब्रेन केमिस्ट्री, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. स्लीप वेक साइकिल मेंटेन करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करने के लिए मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. वरना कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा बॉडी में, यू विल एज फास्ट, यू विल फील टायर्ड ऑल डे एंड डिसीजेज होना स्टार्ट हो जाएंगे. टू मेंटेन योर एनर्जी, पूरे दिन एनर्जेटिक फील करने के लिए, टायर्ड ना फील करने के लिए, अपनी सेलुलर लेवल पे एनर्जी बढ़ाने के लिए मूवमेंट इज़ अ मस्ट. इट इज़ नॉट एन ऑप्शन, इट इज़ अ नेसेसिटी, जस्ट लाइक फूड एंड वाटर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड इट. ओके, एंड लास्ट, डाइजेशन मेंटेन करने के लिए, टू हैव अ स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, ताकि आपके टॉक्सिन्स डेली बेसिस पे बॉडी से निकलते रहें, वो टॉक्सिन्स स्टोर होकर आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म में जाके डिसीजेज ना क्रिएट करें, लाइफस्टाइल इश्यूज ना क्रिएट करें. उसके लिए मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. आपके नर्वस सिस्टम रेगुलेशन के लिए वेगस नर्व, जो हमारे सारे ऑर्गन से कनेक्टेड होती है,
उसको मेंटेन करने के लिए मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. वन पॉइंट आई फॉरगॉट टू मेंशन, डाइजेस्टिव सिस्टम मूवमेंट से अच्छा क्यों होता है? बिकॉज हमारा डाइजेशन तभी होता है जब हमारी जो इंटेस्टाइन्स है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इट्स गेटिंग मूव्ड, इट्स गेटिंग ट्विस्टेड. और वो मूवमेंट, वो ट्विस्ट तभी आता है जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो. अगर आप ऐसे ही बैठे हुए हो, हमारा लाइफस्टाइल कैसे हो गया, बैठे बैठे ऑफिस में चले गए, बैठे बैठे काम कर रहे हैं, फिर बैठे बैठे वापस आ गए ऑफिस से, फिर बैठे बैठे खाना खा रहे हैं, फिर लेट के सो गए, एंड फिर अगेन सुबह से वही सब चीज़ें चल रही हैं. तो अगर आप पूरे दिन बैठे हुए हो, योर इंटेस्टाइन्स आर नॉट मूविंग, योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट गेटिंग ट्विस्टेड, तो योर डाइजेशन विल गेट स्लोअर and a lot of food will be undigested and will stay in your body as toxins and will create diseases in the long term. So to not want that, हेल्दी रहने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, योर मूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट. नर्वस सिस्टम रेगुलेट करने के लिए, हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन होता है वो सारा का सारा कनेक्टेड होता है थ्रू वेगस नर्व, थ्रू इट इज़ कनेक्टेड टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. तो ब्रेन वो सिग्नल ऑर्गन्स को भेजता है कि अब आप ये रिलीज़ करो, अब आप इंसुलिन रिलीज़ करो, वो रिलीज़ करो. ऑल ऑफ दैट बैलेंस हैपन्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट. अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो दैट बॉडी एंड ब्रेन कनेक्शन ऑल्सो गेट्स कट और इट ऑल्सो गेट्स इम्पैक्टेड, और उसकी वजह से इट इम्पैक्ट्स आवर बॉडी एज वेल, आवर इमोशनल हेल्थ, आवर मेंटल हेल्थ एंड आवर फिजिकल हेल्थ एज वेल. सो दोज आर द रीजन्स दैट यू शुड बी एक्सरसाइजिंग फॉर. Exercising today, it's a need, it's no longer a choice, it's no longer a luxury. And as I said, fitness is the last reason why you should be exercising, just to stay as someone who is not unhealthy, just to live a normal life. Exercise is important. So I hope that gave you perspective into a lot of perspective and reasons to exercise. I will attach a simple workout, 15-minute workout that I do on days when I don't feel like exercising. It will also help you to flush your lymphatic system. It will also help you to release those happy hormones, so you feel happy and energetic throughout the day. So I'm going to attach that, and that was the session for today. If you got a lot of clarity into some of the things, which I am sure you will, so if you got any clarity, you realize something, I would love to see your comments in the in the video that I attach later on. So do mention your comments here, what this session helped you think, what it made you realize, what things did you get to know, or what was eye-opening out of this session. Okay. And the last time I checked, a lot of you watch the videos but do not subscribe or follow. If you have not subscribed already, what are you doing? Okay, what are you doing? Go subscribe and follow right now, because I'll be coming up with a lot of these valuable sessions, and I'll be helping you guys to make yourself healthier, better, grow in your life emotionally, physically, career-wise, every way possible. So I'll be seeing you tomorrow in another live. Till now, this was the session. I would love to hear from you, and I'm gonna see you guys tomorrow. Bye-bye.